हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। मैं डॉक्टर डी के सिन्हा और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वह है सेक्स डिटर्मिनेशन। जितने भी लिविंग्स है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेलनेस और फीमेलनेस सेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की बात करें, इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स बाय कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। इट मीन्स some bacteria also acts as male and some others as female. In bacteria, no any organs, no any structures are present, but acts as male or female. इसका मतलब है कि वहां भी सेक्स की बात आती है। एंड इन डेवलप्ड एनिमल्स, इन डेवलप्ड प्लांट्स, different special characters, special organs present in different sex. Okay. बात आती है कि आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन इज sequential process, occurs in sequence and starts with establishment of chromosome or sex chromosome. Okay, definition: the establishment of maleness and femaleness in any organism during its early stage of development is called sex determination, and it is a sequential process. It begins with establishment of genetic constituents. जैसे ही लिविंग्स का, ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स, जेनेटिक कंपोजिशन का फॉर्मेशन होता है, उसी समय सेक्स का भी निर्धारण हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, genetic constitute of living is determined, and at the time of fertilization sex is also determined of offspring. आगे का लिविंग्स उस जायगोट से मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, इसका डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के समय हो गया। आफ्टर दैट जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ, in embryonic stage formation of different organs means reproductive organs or gonads takes place. तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के समय जेनेटिक कंपोजिशन के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गोनाइडल स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल टेस्टिज, इन फीमेल ओवरी, एंड आफ्टर बर्थ इन केस ऑफ ह्यूमन एट एज ऑफ प्यूबर्टी, development of secondary sexual characters occurs that differentiate externally phenotypically male and female. So first stage is establishment of chromosomal sex, chromosomal combination. Second is gonadal sex, development of gonads, reproductive organs, and third is phenotypical sex, means development of external characters as like secondary sexual characters, some characters in male and some in female. Okay, and sex determination also occurs in different ways. In some organism sex is determined before fertilization. अभी जो हमने ह्यूमन की बात किया, तो जिस समय मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ उस समय डिटरमाइंड हो गया कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। But in some organism, sex is also determined before the fertilization. In some, before the fertilization. In some organism,
during time of fertilization and some in some other after the fertilization. Okay, so in some other. Okay, so on the basis of fertilization, sex determination may be progamic, syngamic or epigamic. Progamic before fertilization, syngamic during fertilization and epigamic after fertilization. Okay, on the basis of fertilization, sex determination may be progamic, syngamic and third epigamic. Progamic before fertilization, syngamic during fertilization and third after fertilization. As for example of progamic sex determination is in honeybee. Syngamic in human and some other animals, in plants also. After fertilization also in honeybee. honeybee में दोनों केस है, प्रोगैमिक एंड सिनगैमिक. अब देखिए, इन honeybee, in colony, in group of honeybee, 3 types of bees are present. One is queen, other drone or male, and wild workers. Okay. Drone is haploid, while queen and workers are diploid. It means drones are formed without fertilization by the process of parthenogenesis. तो जैसे ही हैप्लॉइड गैमीट बना, अगर उस हैप्लॉइड गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ड्रोन का फॉर्मेशन होगा. ये पहले ही फर्टिलाइजेशन के पहले डिटरमाइंड हो गया कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यह मेल या ड्रोन बी का फॉर्मेशन करेगा. ओके. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट्स में एन आया एंड फीमेल गैमीट से भी एन आया, हैप्लॉइड गैमीट दोनों मिलकर के डिप्लॉइड बना 2n. डिप्लॉइड जायगोट डेवलप्स इनटू लार्वा, एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वीन बी एंड वर्कर्स बी डिपेंड्स अपॉन फूड गिवन टू द लार्वा. उस लार्वा को कैसा फूड मिलेगा इस पे डिपेंड करेगा कि क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी. इफ लार्वा इज फेड विथ अ स्पेशल फूड कॉल्ड रॉयल जेली, अगर उसको रॉयल जेली मिलता है तो वह क्वीन भी बन जाएगी. जनरल फूड मिलेगा तो वर्कर्स बनेगी. यानी फर्टिलाइजेशन के समय ये क्लियर नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद यह डिटरमाइंड हुआ कि कौन क्वीन भी बनेगी, कौन वर्कर बनेगी. है दोनों फीमेल, लेकिन वर्कर इज नॉट फर्टाइल, दैट इज अस्टेराइल. डिप्लॉयड बट अस्टेराइल. ओके. एंड इन केस ऑफ ह्यूमन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm having eggs fertilized with ovum, then female progeny develop. A sperm having bile fertilized with ovum, a sperm having eggs with ovum, then female, and a sperm having bile fertilized with ovum, then male. तो ये फर्टिलाइजेशन के समय हुआ. तो कुछ फर्टिलाइजेशन के पहले, कुछ फर्टिलाइजेशन के समय, कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद. ओके. नाउ
अब हम लोग को देखना है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म क्या क्या है, कैसे होता है। देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सच एज क्रोमोसोमल मेथड, जेनिक बैलेंस मेथड, okay, and environmental method. Different theories are given. Now see, these are the different mechanism or different theory that are given in respect to sex determination. In first is chromosomal theory of sex determination. It means determination of sex by chromosome. As for example, in human, chromosome number sex chromosome X or Y determines the sex of the individuals or progeny. Genic balance theory, it means ratio of sex chromosome and autosomal chromosome determines the sex. According to genic balance theory, ratio of sex chromosome and autosomal chromosome, इन दोनों क्रोमोसोम का रेशियो सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। इन सम एनिमल्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द इनक्यूबेशन ऑफ एग्स। एग को कितने टेम्परेचर पर इनक्यूबेट किया गया वह डिपेंड करेगा मेलनेस और फीमेलनेस। एज फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, टर्टल, क्राइसेमा पिक्टा, अगमा एगमा, पीटीसी। हार्मोनल रेगुलेशन। इन सम एनिमल्स, सन बीइंग्स, हार्मोन regulates the sex, male or female. And non-allosomic determination mainly occurs in bacteria. Non-allosomic not depends upon chromosome or sex chromosome. In bacteria, male or female depends upon F factor. Fertility factor may be present or absent. इसके आधार पर हम मेल और फीमेल बैक्टीरिया का नाम देते हैं। ओके, नाउ वी नो फर्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी। Also called allosomic theory. In livings, in animals or in plants, chromosome is of two types: autosome and allosome. Allosome is also called sex chromosome. Autosome is also called sex chromosome. Okay. As for example, in case of human, total number of chromosome is 46, in which 44 are autosomal and 2 are sex, and sex chromosome is of two types, X and Y. Sex chromosome was discovered by McCallum in grasshopper, and X chromosome was discovered by Henke and also named X body. Stevens and Wilson, a study about heterogamety of organism, heterogenesis of organism. Okay, Wilson and Stevens and Wilson, a study heterogamety in organism. Stevens and Wilson observed that in two parents, one is heterogamety and other is homogamety. दो में से एक हेटेरोगैमेटी है और एक होमोगैमेटी है. And heterogamety parents
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। हेट्रोगैमेटिक का मतलब that produce two types of gametes, and heterogametic occurs due to presence of a special chromosome, that is sex chromosome. A special chromosome or sex chromosome that was discovered by McCallum, and in human sex chromosome are two types, X and Y. X was discovered by Henkin and Y chromosome was discovered by Stevens। ठीक है ना। तो जो भी हेट्रोगैमेटी का केस आता है वह सेक्स क्रोमोसोम के कारण आएगा, और वही हेट्रोगैमेटी ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नाउ सी, स्टीवेंस एंड विल्सन स्टडी गैमेटोजेनेसिस इन टू पेरेंट्स, वन इज होमोगैमेटिक प्रोड्यूस only one type of gametes, other is heterogametic produce two types of gametes, and heterogametic is responsible for the sex determination due to presence of a special chromosome X and Y. X discovered by Henkin, Y discovered by Stevens. Okay, chromosome in living chromosome is of two types mainly, autosomal and allosomal sex chromosome. Autosomal and allosomal. Autosomal is more in number, allosomal or sex is less in number. As for example, in human 44 are autosomal and 2 are sex chromosome. So नंबर इसका क्या होगा? कम होगा, इसका नंबर ज्यादा होगा। अब अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में एलोसोम और ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर की बात करें, इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो n -1, n where n is हैप्लॉइड सेट। तो जो भी हैप्लॉइड सेट होगा उसमें से एक क्रोमोसोम नंबर कम। ऑटोसोमल, एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन, ऑटोसोमल क्रोमोसोम इज 44, इन हैप्लॉइड सेल 22 एंड डिप्लॉइड सेल 44। सो हैप्लॉइड के लिए n-1 n हाफ सेट, डिप्लॉइड के लिए 2n-2 46 -2 44। ओके, n 23-1 22, एंड इन एलोसोमल कंडीशन इन एलोसोमल। अब देखिए एलोसोमल में अगर हम बात करते हैं तो एलोसोमल में हैप्लॉइड में 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड में 1 होगा। हैप्लॉइड नंबर ऑफ एलोसोमल 1 X और Y दोनों में से कोई एक, और अगर डिप्लॉइड का कंडीशन होगा तो 2 होगा, XX और XY, मेल और फीमेल का। अब देखिए हेटेरोगैमेटी is also differ in different animals and individual. In some male are heterogametic, and in some other female is also heterogametic. और जहां भी हेट्रोगैमेटिक केस आएगा तो हेट्रोगैमेटी ही सेक्स डिटर्मिनेशन के रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो मेल हेट्रोगैमेटी हो या फीमेल हेट्रोगैमेटी हो। ओके, नाउ सी, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में मैं बताया कि मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? हेट्रोगैमेटिक, इन सम मेल हेट्रोगैमेटिक एंड इन सम अदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक। इन केस ऑफ मेल हेट्रोगैमेटिक X and X by type, X and X by type also called lysaceous type. Example, human Drosophila and in mostly plants. Okay, human Drosophila and mostly plants, sex is determined by XX by type, in which XY heterogametic, male heterogametic means XY male. Other condition is proteiner type, XO type, XO type, XO heterogametic means male. Example, grasshopper, bug, ascaris, and in some plants such as Vallisneria and Dioscorea. Vallisneria and Dioscorea. Second is female heterogametic, in which females are heterogametic and produce 2 types of gametes. ZW type. Example, butterfly, silkworm, birds, fish, reptiles. One plant, Fragaria elatior. Fragaria elatior. In this plant, ZW type of chromosomes are present.
एंड अदर इज जेड 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 ओ टाइप। जो भी हेट्रोगैमेटिक यहां होगा फीमेल का कंडीशन आएगा, यहां जो हेट्रोगैमेटिक होगा वो मेल का कंडीशन होगा, और इसी पर सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है ना। अगर हम एक्स वाई की बात करें, इसमें ह्यूमन के केस में देखें हम एक्स एक्स वाई, तो फीमेल मेल 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स वाई प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, 22 plus x. It means in case of human 2 types of sperms are developed. One having X chromosome, other having Y chromosome. It is called gynosperm. It is called androsperm. One is gynosperm, other is androsperm. When gynosperm means a sperm having X chromosome fertilized with ovum, progeny will be female. When androsperm, a sperm having Y chromosome fertilized with ovum, then progeny will be male. Okay, so sex depends upon heterogametic condition. In all examples, heterogamety is responsible for the sex determination. अभी हमने हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में 4 कंडीशन देखा। इसके अलावे भी क्रोमोजोम से रिलेटेड एक और मैकेनिज्म है। अभी हमने देखा सेक्स क्रोमोजोम, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। ओके, आगे जो हम लोग जानेंगे उसमें देखें क्या कि कोई एक क्रोमोजोम नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेट, ए टोटल सेट ऑफ क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। दैट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म, also called Arhen-Toki, also called Arhen-Toki, Arhen-Toki। ओके, देखिए एग्जाम्पल, हनी बी, एंड बास्प, टीटीसी। जनरली इन्हें कॉलोनी, अभी मैं बताया कि कॉलोनी अगर हनी बी की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ बीज, क्वीन बी, वर्कर्स, ड्रोन्स और मेल। क्वीन डिप्लॉयड, fertile female, workers also diploid, a sterile female, drones haploid, fertile मेल। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट क्वीन and drones. Queen produce gametes by meiosis cell division. Haploid gametes. 2n haploid gametes produce. Drones forms gamete by mitosis. ठीक है ना, 2 बनाते। without fertilization, it develops into drone.
means parthenogenesis. Parthenogenesis. And 2n diploid 1 queen other workers. It means males are haploid having only one set, and females queen and workers both are diploid having two set. It means one complete set of chromosome is responsible for determination of sex, not one or two chromosome. Okay, देखें जेनिक बैलेंस थ्योरी was given by C.V. Bridge, and according to this theory, gene of maleness and femaleness are present in every organism and that are present in equilibrium state. मेल और फीमेल दोनों का जीन सभी ऑफस्प्रिंग में होता है और वह इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या देखा ब्रिज ने, इन ड्रोसोफिला बाई क्रोमोजोम इज हेट्रोक्रोमैटिक, क्रोमैटिन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड इट इज नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटरमिनेशन। अब सेक्स डिटरमिनेशन में इस बाई का काम नहीं है, तो काम क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ओके, जीन ऑफ मेलनेस प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम एंड जीन ऑफ फीमेलनेस प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। फीमेल का जीन एक्स पर है और मेल का जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ब्रीज बाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। हम कह सकते हैं बाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है ना। अब देखिए, तो बाई ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर मैं लिखा हूं मेलनेस प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम क्रोमोसोम लाइक ट्रांसफर जीन ऑफ ड्रोसोफिला एंड जीन ऑफ फीमेलनेस प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम लाइक SXL जीन, सेक्स लिथल जीन। ओके, एक्स पर होगा किस रूप में, सेक्स लिथल जीन, जो कि ब्रिज के द्वारा ड्रोसोफिला में पता किया गया था। अब इसी के आधार पर तो बाई तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिपेंड्स अपॉन SIR, सेक्स इंडेक्स रेशियो। सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के रेशियो के आधार पर ही सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा। एज फॉर एग्जांपल SIR, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाई नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट, नॉट क्रोमोसोम, टोटल सेट, और X by A, it is called sex index ratio, and sex index ratio determine the sex. As for example, if SIR is 1, sex index ratio is 1, then normal female, 0.5 normal male, more than 1 super female, less than 0.5 super male, 0.5 to 1 इंटरसेक्स। वैसे कंडीशन में सेक्स का डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम निकालते हैं कैसे, तो जरा सा देख लें। सपोज दैट इन केस ऑफ ह्यूमन 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, इसके कंडीशन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 2 by 44 मीन्स 2 सेट, 44 मीन मतलब 2 सेट, तो 2 by 2 इक्वल टू 1 फीमेल। 44 मीन्स 2A ऑटोसोमल सेट 2A। ओके, 44 प्लस XY, नंबर ऑफ एक्स 1 2.5, 0.5 मीन्स नॉर्मल मेल। ओके, और देखते हैं ऑटोसोमल प्लस XO,
एक्स का नंबर 1/2 इक्वल टू 0.5 ठीक है। अब जैसे ही हो गया देखिए एक्स ओ पाई एब्सेंट, और कंडीशन देखें हम एक्स ए प्लस ट्रिपल एक्स, एक्स का नंबर कितना 3/2 1.5 मोर देन वन मीन्स सुपर फिंगर, ठीक है ना। तो ये हुआ जेनिक बैलेंस थ्योरी। इसके बाद का थ्योरी अभी और बचा हुआ है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हार्मोनल थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी एंड साइटोप्लाज्मिक थ्योरी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।